بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کلاس 7 کی میتھ کی کلاس آج آپ کو کرانے جا رہے ہیں ایکسرسائز 2.3۔ اس کے اندر ہمارے پاس ہیں پولینومیلز۔ پولینومیل کہتے ہیں کثیر رقم، یعنی ایک ایسی رقم جس میں 2-3 ٹرمز ہوں، زیادہ ٹرمز ہوں۔ ٹرم ہم ایک رقم کو کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہم پڑھیں گے کثیر رقمی کے درجے کتنے ہیں، ٹائپس آف پولینومیلز، کتنی اقسام کی پولینومیلز ہیں، اور پھر اسی میں ہم نے ایڈیشن اور سبٹریکشن بھی کرنا ہے پولینومیلز کا کثیر رقمی کا۔ تو یہ ایکسرسائز آپ کو مکمل ایک ایک سوال سارے ڈیٹیل کے ساتھ حل کر کے دے دیے۔ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اینڈ تک تمام کویسچنز کو دونوں میتھڈ ورٹیکلز اور ہاریزنٹل دونوں میتھڈ سمجھائے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایکسرسائز 2.3 کوسچن نمبر 1 ہمارے پاس which of the following algebraic expression are polynomials۔ اردو میں ہم کہیں گے درج ذیل الجبری جملوں میں کون سی کثیر رقمی ہیں۔ ہم نے معلوم کرنی کہ اس میں پولینومیلز کثیر رقمی کون سی ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ تو پولینومیل جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایسا الجبرک ایکسپریشن، الجبری جملہ جس میں کسی بھی ٹرم کی جو ایکسپوننٹ ہو، پاور ہو، وہ ہول نمبر میں ہو، اور یہ کانسٹینٹ، ویریبلز اور کوفیشنٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ کانسٹینٹس کیا ہوتا ہے، ویریبلز کیا ہوتا ہے، اور کوفیشنٹ کیا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پہلے ایک ویڈیو لیکچر، ڈیٹیل ویڈیو لیکچر موجود ہے، بس چھوٹی سی ویڈیو ہے، وہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ ڈسکرپشن میں لنک شیئر کر دیا ہے، اور یہاں جو آپ کو آئی کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں، آپ کو ویڈیو میں، لیکن پہلے اسے دیکھ لیں، آپ کے کنسپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ چلو جی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پہلا آپشن کیا ہے۔ پہلا اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس جمع سی وائی، اس کو دیکھیں تو اٹ از اے پولینومیل، یہ ایک کثیر رقمی ہے۔ دوسری ہمارے پاس اس طرح رقم ہے 2/3 ایکس اسکوائر نفی ایکس بڑا 4 جمع 1/16، یہ بھی ایک کثیر رقمی ہے۔ تیسری رقم ہے دیکھیں x3 نفی 4x2 جمع 1/x، یہ ایک کثیر رقمی نہیں ہے، اٹ از ناٹ پولینومیل۔ کیوں؟ دیکھیں اس کے اندر یہ یہاں پہ ایکسپوننٹ بھی ہول نمبر میں ہے، یہاں پہ بھی ایکسپوننٹ ہول نمبر میں، لیکن یہ جو 1/x ہے، یہ جو بٹے میں آ گیا، فریکشن میں x آ گیا، اب اس کی جو ایکسپوننٹ ہوگا وہ ہول نمبر نہیں ہوگا کیونکہ یہ نیچے آ گئی ہے، تو اس لیے یہ کثیر رقمی نہیں ہے۔ اس کے ہمارے پاس 2x² پلس 4x پلس 3، یہ ایک کثیر رقمی ہے، اٹ از اے پولینومیل۔ اگر آپ انگلش میڈیم ہے تو آپ انگلش والا آنسر لکھیں، اگر اردو میڈیم ہے تو آپ اردو والا جواب لکھیں گے۔ پانچویں رقم دیکھیں، یہ بھی ہمارے پاس یہ ایک کثیر رقمی ہے۔ چھٹی رقم دیکھیں آپ، چاہے مائنس میں ہے پھر بھی یہ ایک کثیر رقمی ہے۔ اس کا ساتواں جوز دیکھیں 2x3y پلس 2، یہ ایک کثیر رقمی ہے۔ z2 جمع 2z جمع 12، یہ بھی ایک کثیر رقمی ہے۔ تو پہلا سوال حل ہوا۔ کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، فائنڈ دا ڈگری آف پولینومیلز گیون ان کوشچن 1۔ وہ کہتا ہے کہ سوال 1 میں دی گئی کثیر رقموں کا درجہ معلوم کریں۔ درجہ کیا ہوتی ہے؟ جتنی اس کا ایکسپوننٹ ہوتا ہے یہ اس کا اتنا درجہ ہوتا ہے۔ یہ اے ایکس اسکوائر ہے ہمارے پاس جمع بی ایکس جمع سی وائی ہے، یہ دیکھیں یہ دو کثیر رقمی درجی ہے، کیونکہ اس میں یہ ایکس کا کیا ہے 2 ہے، اور اگر ان دونوں کا دیکھیں ایک ایک ہے، ان کو جمع کریں گے پھر بھی 2، یہ 2 ڈیفرنٹ ہیں تو ان کو بھی جمع کریں گے تو ہمارے پاس 2 ہے۔ دوسرا ہمارے پاس 2/3 وہی رقم ہے جو پہلے سوال میں تھی، اس میں دیکھیں تو یہ بھی 2 کثیر رقمی درجی ہے، 2 ڈگری پولینومیل ہے۔ تیسرا آنسر دیکھیں، یہ ہمارے پاس 3 ڈگری ہے۔ چوتھی دیکھیں تو چوتھے میں ہمارے پاس جناب 2 درجے کثیر رقمی ہے، پانچویں میں 3 کثیر رقمی درجہ ہے، چھٹی کا 1 کثیر رقمی درجہ ہے، ساتویں کا دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جناب 4 کثیر رقمی درجہ ہے۔ کیا ایک ٹرم کے اندر دیکھیں اس کے ایکس کی 3 اور وائی کی 1، تو یہ کیا جمع ہوں گی 4 ہو جائیں گی۔ آٹھویں میں 2 کثیر رقمی درجہ ہے جناب۔ کوشچن نمبر 3، ایڈ دا فالوئنگ ایکسپریشنز، درج ذیل الجبری جملوں کو جمع کریں۔ اب ہمارے پاس جمع کرنے کے 2 طریقے ہیں، آپ کو دونوں ٹرم بائی ٹرم سمجھا دیتا ہوں۔ پہلا جو 4x اسکوائر نفی 8x جمع 12، دوسرے کا میں 6x اسکوائر نفی 5x جمع 4۔ پہلے ہم کہتے ہیں ہاریزنٹل میتھڈ، افقی طریقہ کار۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ایک رقم لکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، یہ ہم نے پہلی رقم ویسے کے ویسے لکھ دی، اس کو بریکٹ کے اندر لکھا کے سیپریٹ ہو گیا، علیحدہ ہے۔ پھر ہم نے جمع کی علامت ڈالی کیونکہ ہم نے ایڈ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے دوسری رقم لکھ لی۔ یہ لکھنے کے بعد ہمارا الجبرک ایکسپریشن والا طریقہ ہاریزنٹل میتھڈ، ہم کیا کریں گے،
लाइक टर्म्स जो हैं हमारी उनको इकट्ठा कर लेंगे। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, इसके ऊपर भी एक छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो मौजूद है, पहले वो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो यहाँ जो आपको आई का बटन नज़र आ रहा है इसको क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं पता चलेगा लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। तो देखें 4x स्क्वायर जमा 6x स्क्वायर, ये दोनों हमने x स्क्वायर वाली यानी एक ही वेरिएबल और एक एक्सपोनेंट वाली ये इकट्ठी कर ली। उसके बाद 8x और 5x इनको हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हमारे पास जनाब आ गई 12 और 4, ये दोनों रकम हमने इकट्ठी कर ली। अब जब इनको जमा करेंगे तो जब हम जमा करते हैं लाइक टर्म्स को तो क्या होता है, सिर्फ हम उनके कोफिशिएंट जमा करते हैं। 4 और 6 10x स्क्वायर वैसे का वैसा नफी। देखिए यहाँ पे हमारे पास नफी 8x और नफी 5 है, देखिए यहाँ पे नफी 8x और यहाँ पे नफी 5x है। तो ये नफी नफी दोनों होंगे जमा, लेकिन अलामत नफी की नफी 8 और नफी 5 13 हो गया, x वैसे का वैसा जमा 12 और 4 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जनाब 5x स्क्वायर नफी 4xy जमा 7, दूसरे रकम में 2x स्क्वायर नफी 6xy जमा 2। अब हम इसको मैं आपको समझा देता हूँ वर्टिकल मेथड से। वर्टिकल मेथड क्या है, उसकी तरीका जो ऊपर नीचे हम लिखते हैं। पहले हमने पहली रकम लिख ली जनाब, ये बिल्कुल एज इट लिख दी, उसके नीचे बिल्कुल दूसरी रकम लिख देंगे, दूसरी रकम लिख दी। अब हमने इनको जमा कर देना है, जो हमारा पुराना सादा आम हम अरिथमेटिक जमा का तरीका वही है। अब देखिए जमा करेंगे तो 5 और 2 7x2 जमा 4 और 6 10xy और 7 और 2 9। याद रखिए लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है, यानी x2 के नीचे x2 xy के नीचे xy, और ये हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे के वैसे आएंगे, तो इनको आपस में जमा कर देना है। याद रखिए जमा और नफी में सिर्फ जो कोफिशिएंट होते हैं, अदद होते हैं, वो जमा और नफी होते हैं। जो वेरिएबल्स और उसका एक्सपोनेंट है वो नहीं होता। इसका तीसरा जो है हमारे पास x3 x की पावर 3 जमा 4 x की पावर 2 जमा 3 x जमा 4 3 x पावर 3 जमा 4 x जमा 4। अब ये हमारे पास वाले, इसको भी हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से करते जाते हैं। पहले पहली रकम लिख ली पूरी, उसके बाद हमने दूसरी रकम लिख ली। लिखने के बाद अब क्या करना है, हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर लेना है। देखिए जी यहाँ हमने पहले लाइक टर्म को इकट्ठे करना, x3 जमा ये 3x3 यहाँ पे आ गई। उसके बाद 4x की पावर 2 वाला हमारे पास कोई नहीं, वो वैसे का वैसे आएगा, यहाँ मुझसे मिस हो गया था, आपने कर लेना है। उसके बाद देखें जमा 3x जमा 4x और ये जमा 4 और 4। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, इनको जब हम जमा किया x3 और 3x3 को, देखें इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, जिसका कोफिशिएंट कोई भी नहीं होता उसका क्या होता है 1, 1 और 3 4, तो 4x की पावर 3 आ गई जमा ये 4x2 वैसे का वैसा आएगा, क्योंकि इसमें जमा होने वाला नहीं है। 3x और 4x अगर आपस में जमा हो तो 3 और 4 7x, 4 और 4 8, तो ये हमारा आंसर आ गया। चौथा जो है जनाब हमारे पास, इसकी हमने रकमें लिख ली, हॉरिजॉन्टल मेथड से करने जा रहे हैं। उस पहली रकम पहले लिख ली, दूसरी रकम बाद में लिख दी। इसमें है तुम्हारे पास 3 रकमें, तो हमने तीसरी भी लिख ली। अब वही तरीकाकार, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। देखें x की पावर 2 यहाँ पे है, इधर 2x की 2 ये पे है और 3x2 यहाँ पे, इन तीनों को पहले लिख लिया। लिखने के बाद हमने x वाली उठाई, 2x जमा 4x नफी 8x, ये इकट्ठी कर दी। उसको कांस्टेंट 4 11 और 10, इनको इनकी अलामतों के साथ लेके आना है। अब क्या करेंगे जनाब, इनको आपस में जमा कर दें। जब जमा करेंगे देखें 1 और 2 3 3 और 3 6x की पावर 2 हो गई, 2x। अब इसके बाद 2 और 4 6 हो गए। अब यहां पे हमने क्या किया है कि एक नफी थी, इससे पहले हमने सिर्फ 2 और 4 6x नफी 8x वैसे का वैसे लिख दिया ताकि अगले स्टेप पे कर दें। और 4 और 11 15 15 10 25 ये हो गए। नेक्स्ट स्टेप पे देखें 6x की पावर 2 वैसे आ गया नफी। अब ये जमा 6x है और नफी 8x है, तो 8 क्या है बड़ा है, उसमें से 6 जाएगा तो क्या होगा, बाकी नफी 2x बचेगा जमा 25। इसका 5वां जो हमारे पास, उसी तरीके से पहले पहली रकम लिख दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब उसी तरह हॉरिजॉन्टल मेथड, तमाम रकमों को हम लिखेंगे, उनका ब्रैकेट डाल देंगे। ब्रैकेट डालने के बाद क्या करना है, हमने उनको पहले लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। पहले पावर 3 वाली x की पावर 3 वाली दोनों रकमें कर ली, फिर हमने जनाब x2 x की पावर 2 वाली कर दी, फिर नफी x अकेला है हमारे पास तो x कर दिया, सॉरी नफी x, फिर जमा 20 और जमा 4x। ये लिखने के बाद
अब हमारे कांस्टेंट है 2 4 11 जो है उनको हमने लिख दिया। अब इनको हमने कर देना है जमा, 1 और 4 5x की 3 हो गई, 2 और 1 3, ये 3x की पावर 2 होगी, नफी x है और हमारे पास यहाँ पे जनाब देखें 20 और 4 ये दो जमा की है नफी का, हमने इन दोनों को जमा किया 20 और 4 24x, नफी x हमने वैसे लिख दिया जमा 17, 2 और 4 6 6 और 11 17। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको बाकी हमारा वैसे का वैसे रहेगा 5x 3 जमा 3x 2, नफी x है जमा 24x है, इसमें से एक गया क्योंकि इसका जिसका कोफिशिएंट कोई नहीं तो उसका एक होता है, 24 में एक गया बाकी 23x जमा 17। ये जनाब हल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास subtract the first polynomial from the second polynomial, पहली कसी रकमी को दूसरी कसी रकमी से नफी करें। देखिए पहली को हमने दूसरी में से नफी करना, पहले हमने रकमें लिख लेनी है, उसके बाद क्या करना है हमने हॉरिजॉन्टल मेथड जो है हमारा उसके साथ हमने क्या करनी है, पहले वो रकम लिखनी है जो बड़ी है जिससे हमने नफी करना है। तो ये पहले हमने इससे नफी कर कहा गया ना, दूसरी से नफी करना है, नफी की अलामत डाली, जमा करना जमा की अलामत और ब्रैकेट में दूसरी रकम लिख दी। अब जो हमारा स्टेप है सबसे अहम वो ये है कि हमने दूसरे स्टेप के ऊपर पहली रकम को तो एज इट वैसे का वैसे लिख देना है, दूसरी रकम हमने इनका ब्रैकेट तोड़ना है। तो क्या करना, जब किसी ब्रैकेट से पहले हमने बॉडमास रूल में पढ़ा था, बॉडमास के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेक्चर मौजूद है वो देख लें, नहीं तो मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे सबटाइटल भी लगा देता हूँ, यहाँ पे आई के निशान पे भी आपको मिल जाएगा। जब किसी बॉडमास से ब्रैकेट से पहले या बाहर से पहले नफी आ जाएगी तो वो अंदर वाले जितनी भी रकमें होंगी टर्म्स होंगी उनकी अलामत तब्दील कर देगी। अब ये जमा थी तो नफी 5x2, ये जमा थी ये भी नफी, और ये नफी था तो ये जमा हो गई। अब जब हमने अलामतें चेंज कर ली, आगे हमारा स्टेप बिल्कुल वही है कि हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देना है। देखिए 10x की 2 यहाँ पे था, नफी 5x2, इन दोनों को इकट्ठे कर दिया, जमा 8x नफी 2x जमा 7 जमा 1। अब जब कर लिया तो उसको हल कर लें, 10 और में से 5 गया बाकी बचे 5x की रख दो, 8x है और नफी 2x है, 8 में से 2 के बाकी जमा 6x क्योंकि जमा की रकम बड़ी है, 7 और 1 दोनों जमा हो गए तो 8। ये हमारा आंसर आ गया। इसका दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये देखिए, पहले हमने पहली रकम लिख ली, फिर दूसरी रकम लिखी, टर्म लिखी। अब मैं आपको इसको ये वर्टिकल मेथड से भी उसकी तरीके से समझा रहा हूं कि कहीं आपको अगर ये ना लगे कि ये नहीं समझाया गया, तो वही तरीकाकार पहले सबसे पहले जिस रकम से नफी होने वो ऊपर लिख लें, उसके बाद दूसरी रकम नीचे लिखें। एक ख्याल कीजिएगा, दूसरी रकम आपने नीचे लिखे y2, ये नफी कर रहे हैं तो ये जमा की रकम थी, इसके साथ हमने नफी लगा दिया क्योंकि जब हम किसी को नफी करेंगे तो उसके अलामतें तब्दील करेंगे। ये 2q की ताकत 2q स्क्वायर, ये नफी की थी, इसको यहां पर तब्दील कर दिया जमा 3r था, इसको तब्दील कर दिया नफी 3r। बस ये समझने वाला पॉइंट है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ आ गया। अब नफी कर दें, यहां देखें 8 में से 1 गया बाकी 7y, 6 और 2 8q हो गया स्क्वायर, जमा 7 में से 3 के बाकी बच गया 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो जी तीसरा जो उसी तरह हमारे पास जनाब रकमें आ गई। अब आपने पहले हॉरिजॉन्टल मेथड से हम करने जा रहे हैं, पहले आपने रकम नफी करनी वो लिख ली, उसके बाद दूसरी रकम एडिट लिख ली, लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नफी लगाने के बाद इनकी अलामत 2x का पावर 3 नफी में आ गया, जमा वाली ये भी नफी हो गई, जमा 4x था नफी 4x हो गया, जमा 12 था नफी हो गया। अब हमने लाइक टर्म इकट्ठी कर लेनी है। देखिए पहले x पावर 3 वाली इकट्ठी कर ली, फिर x पावर 2 वाली, क्योंकि ये अकेली है तो सिर्फ चाहे यहाँ पे है वो आ गई, फिर x वाली, और ये हमारे पास 2 कांस्टेंट आ गए, जमा 24 था नफी 12। याद रखें जब भी हम इनको इकट्ठे करेंगे इनकी अलामतें साथ जाएंगी, अलामतें तब्दील नहीं। ये देखिए यहाँ से 2x की पावर 3 आप लेके हैं तो ये नफी के तो नफी लिखेंगे। अब हल कर लें जनाब, देखिए 7 में से 2 गया बाकी 5 बचा, नफी 12 और 2 वैसे का वैसा, 12x में से 4x गया बाकी 8x, 24 में से 12 गया बाकी 12। छठा जो जनाब देखें जी, हम उसी तरह पहले दोनों रकमें लिख ली जो सवाल में दी गई हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड है, जिससे नफी करने में पहले ब्रैकेट बंद और
नफी डाल के दूसरी रकम लिख दी। दूसरी लिखने के बाद हमने जनाब सबसे पहले क्या किया, पहली रकम वैसे की वैसी उसकी अलामत तब्दील की। ये नफी 3x जमा नफी हो गया, ये भी नफी हो गया। अब लाइफ टर्म इकट्ठी कर लें। 8x की 3 अकेला है इसलिए हमने इसको लिख दिया। 12x की ताकत 2 नफी 3x 2 जमा 9x नफी 4x जमा 10 नफी 2। अब हल कर लें। 8x की 3 वैसे का वैसा, 12 में से 3 गए 9x की ताकत 2, 9x में से 4x गए 5x और 10 में से 2 गए 8। चलो जी 5वां जुज़ है। पहले दोनों रकमें लिख ली, दोनों रकमें लिखने के बाद हॉरिजॉन्टल मेथड है हमारा, ठीक है जी। जिससे तक नफी करनी वो पहले नफी डाल के जो नफी होनी है, तफरीक होनी है, उसको बाद में लिखें। लिखने के बाद दूसरे स्टेप पे क्या करना है, हाँ जी बिल्कुल सही, अलामत तब्दील कर देनी है, ब्रैकेट तोड़ देना। ये हमने की, देखिए जमा वाली तीनों नफी हो गई। अब लाइक तब इकट्ठी कर लें, एक्स की पावर 3 वाली इकट्ठी, एक्स की पावर 2 वाली, और फिर ये 6x y2 वाई स्क्वायर और नफी 3x ये इकट्ठी कर दी। करने के बाद नफी करें, इनको हल कर लें। 4x में से 1x गया, बाकी 3x 3 जमा 3x 2y से 2x y गया तो सिर्फ x स्क्वायर y बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 6xy स्क्वायर है तो नफी 3 6 में से 3 गया, बाकी 3xy जमा का बच गया। यहाँ 4 है और y अकेला है तो इसका 1 होगा, 4 में से 1 गया तो हमारे पास 3 बच गया। छठा जो दोनों रकमें लिखी, उसी तरह हॉरिजॉन्टल मेथड, पहले जैसे नफी होना है वो लिखी, उसके बाद ये रकम पहले लिखी हमने, दूसरी नफी डाल के लिखी। अब दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, नफी के बाद अलामत देखें, ये जमा नफी हो गया, नफी जमा हो गया, नफी जमा हो गया। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म इकट्ठी कर लें। 4x नफी 2x ये इकट्ठी होगी, 4y नफी 3y, लेकिन 4y नफी 3y। z भी आप पहले कर सकते हैं लेकिन हमने तरतीब की x y z से रखें। जमा 3z जमा 4z फिर 12 और जमा 1 आ गया। अब हल कर दें जी, 4 में से 2 गया 2x, 4y में से 3y गई, सिर्फ y बचे, अब से 3 गया 1 और 1 हम लिखते नहीं है, 3 और 4 7z हो गया, 12 और 1 13 हो गया। हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज 6x एक्सपोनेंट 3 प्लस 4x पावर 2 प्लस 8x जमा प्लस 12। if one polynomial is x power 3 plus 2x power 2 plus 3x plus 2 then find the other polynomial। यानी अब ये क्या कह रहा है कि दो पोलिनोमियल का से मजमूआ ये है, एक अगर ये है तो दूसरा मालूम कर दो। क्या करना है, दूसरा नफी करना है। इसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड से ही कर देते हैं, लेकिन ये हमारे पास है सम, इसको हमने पहले लिखा, इसमें से ये नफी कर देंगे जो दूसरी निकल आएगी। अब क्या करना है, हाँ जी ब्रैकेट तोड़ने और नफी वाले के अलामत तब्दील कर देनी है। ये हमने सारी अलामतें तब्दील कर दी। तब्दील करने के बाद लाइक टर्म इकट्ठे लें, x3 वाली फिर x2 वाली, उसके बाद 8x वाली। और अब देखें 6x3 में से x3 का 5x की पावर 3, 4 में से 2 क्या 2x की पावर 2, 8 में से 3 क्या 5x और 12 में से 2 गया 10। तो इस अदर पोलिनोमियल दूसरा पोलिनोमियल कसीर में होगी, हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, सब्ट्रैक्ट 2x पावर 2 नफी 4x प्लस 4 फ्रॉम द सम ऑफ 4x पावर 2 प्लस 2x प्लस 7 एंड x पावर 2 प्लस 6x प्लस 2। अब इस सवाल में देखें तो वो कहता है इसको हमने इनके मजमूए से नफी करना है। तो ये मैं आपको वर्टिकल मेथड से ना समझा दूं, चलिए वर्टिकल मेथड से समझा देते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, हमने इन दोनों को 4x जमा 2x इस रकम को और इनको दोनों को आपस में जमा कर लेते हैं। ये जो ऊपर तले दोनों लिखी वर्टिकल मेथड में, इसको जमा कर दिया, 4 और 1 5, 6 और 2 8, 7 और 2 9। तो हमारे पास 5x की ताकत 2 जमा 8x जमा 9 निकल आया। अब दूसरा स्टेप करते हैं, ये हमारे पास मजमूआ निकल आया, तो हमने सेम एज इट को ये लिख दिया। अब इसको हमने नफी करना है तो हमने इसको नीचे इसके नफी लिख दिया। लेकिन वही बात, जब नफी करेंगे अलामतें तब्दील करेंगे। यहाँ 2x 2 जमा का था नफी हो गया, ये नफी का 4x था जमा हो गया, ये 4 जमा का था नफी हो गया। अब हल कर लें, 5 में से 2 गया 3x की ताकत 2, 8 और 4 12, 9 में से 4 गए 5। तो ये हमारा आंसर आया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कहीं पे समझ ना आई हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा, कमेंट्स करके पूछिएगा।
آپ کو ڈیٹیل آنسر ملے گا. ویڈیو کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے.